ओके बच्चों, दोबारा स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके। यस सर। तो ओके ओके। इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो पहले इंडिया की लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि इंडिया कहाँ सिचुएट करता है, किस कॉन्टिनेंट में और किस कॉन्टिनेंट की किस डायरेक्शन। तो इंडिया located in the Asian continent and that is South Asia। तो इंडिया की जो है जो इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है दैट इज कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन जो रेस्ट ऑफ एशिया उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज आती हैं दैट इज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। These countries form together is called Indian subcontinent. So latitudinal extent of India, that means India locate between the two latitudinal lines, that is 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north. That north stands for northern hemisphere. And if we take the longitudinal extent, that is 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. Here E means eastern hemisphere. The Tropic of Cancer that passes through the middle of India, exactly in the middle of India, एंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे भारत के कितने स्टेट्स के बीच में से होकर पास करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द फर्स्ट इज गुजरात, देन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। These are the states through which the Tropic of Cancer passes. There are the two island groups, that is Andaman and Nicobar Island, that is situated in the Bay of Bengal, and second was Lakshadweep Islands, that is situated in the Arabian Sea. Now we take the size of India, that is 3.28 million square kilometer. Okay, that is the 7th largest country in the world. Before India, there are 6 countries. The biggest country, that is Russia, second Canada, then USA, then China, Brazil, India, and then after on 7th place India is located. Okay, and we stand second position in the case of population. North to south extent of India means जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक हमारा जो लेंथ है that is 3214. That means extent. This is called north to south extent 3214, and west to east, that is गुजरात में जो कच्छ है वहां से लेकर सिलचर तक जो इस west to east extent है that is 2933 kilometer. Okay, and now in case of frontier we have 15,200 kilometer. हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो हमारी 15,200 किलोमीटर है. We share with different countries like Pakistan, then Afghanistan, then China, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Nepal, right? And coastline means coast boundary, that is 7,517 kilometer, including the island groups of India. India and its neighbors, we have 28 states and 8 union territories. Okay, अभी जो एक स्टेट है उसको खत्म कर दिया गया, उसका जो स्टेटस है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर. इससे पहले 29 थे, लेकिन उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया है और 2 यूनियन टेरिटरीज को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया. दादर नगर हवेली एंड दमन दीव ये पहले अलग अलग थी, लेकिन अब इनको एक ही यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है. नाउ देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी. ओके, द अरबियन सी located in the west direction of India and Bay of Bengal in the east direction of India, and in south direction there is the Indian Ocean. The Indian Ocean is the only ocean which is named after a country. Okay beta, next is physical features of India.
Physical features, that is the first of all theory of plate tectonics. Plate tectonics means it is believed that, or you can say this is the best accepted theory, and according to this theory the earth crust is formed out of 7 major plates. जो हमारी जो अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर है ये 7 मेजर प्लेट से मिलकर बनी हुई है, और इनको इनकी मूवमेंट्स की वजह से इनकी 3 तरह की मूवमेंट होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड हॉरिजॉन्टल। कन्वर्जेंट मींस एक दूसरे की तरफ आना, डाइवर्जेंट मींस एक दूसरे से दूर हटना, और हॉरिजॉन्टल मींस पैरेलल मूवमेंट करना। ओके, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन ऑफ वेस्ट एशिया एंड हिमालय। देखिए हिमालय और ये कैसे इसकी फॉर्मेशन क्या हुई। इनिशियली देयर वाज ओनली वन कॉन्टिनेंट, you can say a super continent, that was called Pangaea. Okay, and due to these the movement of these tectonic plates, the Pangaea divided into 2 plates, that was Angara land and Gondwana land. Okay, and Gondwana land further जो डिवाइड हो गया और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में डिवाइड हो गया इन गोंडवाना लैंड से, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरोपियन प्लेट से कोलिजन हुआ, और उसकी वजह से हिमालय जो था उसकी फॉर्मेशन हुई। और जैसे जैसे हिमालय की जो हाइट बढ़ती गई, तो हाइट बढ़ने से जो रिवर जैसे जो सिस्टम वो एक्टिवेट हो गए, और रिवर्स जो फ्लो करती रही ग्राउंड्स में, और धीरे धीरे वो बहुत सारा जो लोडेड मटेरियल था वो नीचे ला गए। टेथिस नाम एक सी था, टेथिस सी, वहां पर उसको उसमें डाल दी, धीरे धीरे वो कवर अप हो गया, और वहां पर एक ग्राउंड बन गया, दैट वाज कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन। ओके, physiographic division of India, the first one was Himalayan mountain, very important topic. It is also young and folded mountain. Okay, its length from Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh, that is 2400 kilometer, and in width that is different. In Jammu Kashmir it is 400 kilometer, and in Arunachal Pradesh it is just 150 kilometer width. The first layer, Himalaya has 3 ranges. The first range is called the Great Himalaya, or you can say Himadri, or Inner Himalaya. All Himalayan highest peak more than 6,000 meters. The height, the peak which has the height of more than 6,000 meters, they lie in this range. That is Himadri. Second was Lesser Himalaya or Himachal. इसमें जो एवरेज जो हाइट आती है दैट इज 3700 टू 4500 मीटर हाइट जो है, और जितने भी हिल स्टेशन है वो इसी रेंज में लाई करते हैं। और जो थर्ड है, और यू कैन से जो आउटमोस्ट जो साउथ मोस्ट जो लेयर, दैट इज कॉल्ड शिवालिक रेंज। ओके, यहाँ पर दून्स भी हैं, दून्स भी काफी फेमस है, आपने सुना होगा देहरादून। ओके, तो व्हाट आर दून्स? लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन बिटवीन लेजर एंड शिवालिक हिमालय। जो मिडल हिमालय और जो शिवालिक के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैली पड़ते हैं, दोज वैलीज आर कॉल्ड दून्स। एग्जांपल देहरादून। नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, पंजाब और कश्मीर और हिमाचल हिमालय। समटाइम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंजाब हिमालय कौन सा है, या कश्मीर हिमालय कौन सा है, या हिमाचल हिमालय कौन सा है। The land, the Himalaya between Satluj and Indus, सतलुज और इंडस रिवर के बीच में जो हिमालय, that is called पंजाब और कश्मीर और हिमाचल हिमालय, राइट। सतलुज और काली रिवर के बीच में उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। काली एंड तिस्ता रिवर के बीच में उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, और तिस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच में उसको वो है आसाम हिमालय। ओके, और जो ईस्टर्न में कुछ हिल्स हैं, पटकोई, नागा, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स, दीज आर कॉल्ड पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स। द नॉर्दर्न प्लेन, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, दे फॉर्म द प्लेन, इज 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 किलोमीटर विड्थ। द वेस्टेस्ट पार्ट इज कॉल्ड द पंजाब प्लेन। तो पंजाब हरियाणा में जो इंडस रिवर जो फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड पंजाब प्लेन। घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में उसको बोलते हैं गंगा प्लेन। तीस्ता रिवर ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बहती है, ये रिवर बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर।
ओके, इंटरनेशनल बॉर्डर पर आप कभी विजिट करेंगे बाय रोड बागडोगरा, यानी वेस्ट बंगाल में जो एयरपोर्ट है बागडोगरा, वहां से जब आप गैंगटोक जाएंगे तो रास्ते में आपको तीस्ता रिवर मिलेगी, बिल्कुल बॉर्डर पर बहती है। ओके, और आसाम में ब्रह्मपुत्र प्लेन बोलते हैं इसको। दैट क्लियर? उसके बाद है एक दो टर्म आती है भाबर और तराई। भाबर क्या होता है? जब रिवर्स शिवालिक रेंज से नीचे आते हैं तो अपने साथ छोटे छोटे पेबल्स, एक लंबी बेल्ट होती है 8 से 16 किलोमीटर लंबी एक चौड़ी बेल्ट होती है पत्थरों की, वहां पर आपको रिवर दिखेगी नहीं, लेकिन उस पत्थरों के नीचे पानी बहता रहता है। दैट बेल्ट इज कॉल्ड भाबर बेल्ट। ओके, और उसके बाद उन पत्थरों की बेल्ट के बाहर जब जो रिवर है दोबारा से रिपीयर होती है, दैट एरिया इज कॉल्ड तराई। ओके, so alluvial soil, there are two type of alluvial soil, भांगर एंड खादर। जो ओल्ड alluvial soil है उसको भांगर बोलते हैं क्योंकि उसमें जो स्टोन्स हैं, छोटे छोटे स्टोन्स हैं, वो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, और जो न्यू alluvial soil है दैट इज कॉल्ड खादर। नेक्स्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो होता है साउथ में, ये दो टाइप का होता है, सॉरी दो पार्ट्स हैं इसके, टू मेन डिविजन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। अभी तक आपने जो पढ़ा होगा पेनिनसुलर प्लेटो सिर्फ आपने एक ही पढ़ा है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, ये रिवर्स है, ये वो है, लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड किस किस के बीच में लाई करता है? नर्मदा रिवर टू विंध्या हिमाचल, जो विंध्याचल जो माउंटेन है उसके बीच में लाई करता है, और नॉर्थ वेस्ट में अरावली जो रेंज है। ओके, तो नर्मदा टू विंध्या के बीच में जो प्लेट्यू पड़ता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड। और डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है? ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, नर्मदा और सतपुड़ा से लेकर नीचे, ठीक है ना, ये सारा क्या पड़ता है? डेक्कन प्लेट्यू पड़ता है। इसके दो घाट होते हैं, वेस्ट में जो घाट है दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न घाट, और ईस्ट में उसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। इसमें कुछ पास भी हैं, दैट इज थाल, भोर, पाल घाट, ठीक है। इसकी जो एवरेज हाइट है दैट इज 900 टू 1100 एवरेज हाइट। और अनाईमुदी एंड दादू बेटा पीक, दीज आर द टू हाईएस्ट पीक इन द ऑफ द वेस्टर्न घाट हिल्स। ओके, अनाईमुदी दैट इज 2695 मीटर एंड दादू बेटा पीक दैट इज 2637 मीटर। ईस्टर्न घाट है, इसकी हाइट कम है, एवरेज हाइट है दैट इज 600 मीटर, बट इसकी विड्थ ज्यादा है। जो वेस्टर्न घाट है इसकी विड्थ कम है, लेकिन ईस्टर्न घाट की विड्थ ज्यादा है। ओके, और इसमें जो हाईएस्ट पीक है दैट इज महेंद्रगिरी, हाईएस्ट पीक है दैट इज 1501 मीटर। देन इंडियन डेजर्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड थार डेजर्ट। ओके, लो rainfall, sand dunes generally you can see in the Jaisalmer area. Okay, and very you can see only thorny bushes. Okay, next, coastal plains. We have two coastal plains, the western coast. वेस्टर्न कोस्ट में इसके तीन पार्ट्स हैं। कोंकण कोस्ट बोलते हैं, दैट इज मुंबई टू गोवा। जो मुंबई टू गोवा जो कोस्ट है दैट इज कॉल्ड कोंकण। इसी के नाम पर कोंकण रेलवे भी है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द मिरेकल। कभी आप विजिट कीजिएगा कोंकण रेलवे, आप दिन के टाइम में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल प्लेन, उसको बोलते हैं कन्नड़ प्लेन। जो कोस्टल प्लेन के तीन पार्ट्स हैं, मुंबई टू गोवा दैट इज कॉल्ड कोंकण, और जो कर्नाटका में है, कर्नाटका में दैट इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन, एंड जो केरला के अंदर है उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ओके, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है दैट इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। ओके, जो ईस्ट में है तमिलनाडु की तरफ है दैट इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। तो दो आइलैंड ग्रुप है, दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप का जो पहले नाम था उसको बोलते थे लक्काडाई या मिनिकॉय या एमिंडाई, ये इसके इनिशियल नेम थे, बट इन 1973 इट वाज रीनेम्ड एंड कॉल्ड लक्षद्वीप। इसका जो टोटल एरिया है दैट इज 32 स्क्वायर किलोमीटर, कवरत्ती इसकी कैपिटल है। और पिट्टी एक आइलैंड है, यहाँ पर लोग नहीं रहते, यहाँ पर बर्ड सेंचुरी है। ओके, अंडमान निकोबार, ये दो पार्ट्स हैं, एक अंडमान और एक निकोबार। इंडिया का जो ओनली एक्टिव वोल्केनो है वो निकोबार आइलैंड में ही हम देख सकते हैं। यहाँ पर आज भी आदिवासी लोग रहते हैं और वे भारत वाले लोगों को बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। निकोबार आइलैंड में
जो आया था काफी डैमेज हुआ था 2004 में, जो सुनामी आया था तो काफी डैमेज हुआ था निकोबार आइलैंड में। नाउ द क्लाइमेट। Climate refers to the sum total weather condition and variations over a large area for a long period of time more than 30 years। किसी एक एरिया का एवरेज वेदर कंडीशन, ठीक है ना, जनरली हम उसको ऑब्जर्व करते हैं एक कंटिन्यू लगभग 30 इयर्स तक, तो दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। और वेदर क्या होता है, डे टू डे चेंजेस, और यू कैन से आर टू आर चेंजेस इन एटमॉस्फेयर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी जगह का मौसम जब बार बार बदलता रहता है, कभी धूप आ जाती है, कभी बारिश आ जाती है, दैट इज कॉल्ड वेदर। और क्लाइमेट कंट्रोल को कौन कौन चीजें हैं, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स, रिलीफ फीचर। वन बाय वन। लैटिट्यूड मीन्स जितना आप अपर लैटिट्यूड पे जाएंगे जो टेम्परेचर है वो कम होते जाता है। जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड है आपकी ट्रॉपिक ऑफ सॉरी इक्वेटर लाइन, राइट, वो सबसे गर्म है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, और पोल है 90 डिग्री, तो 0 से 90 डिग्री की तरफ आप जैसे जैसे मूव करोगे जो टेम्परेचर है वो डाउन होता रहता है। सेकंड है एल्टीट्यूड मींस जैसे जैसे आप हाइट वाले जगह पर जाएंगे, ऊंची ऊंची जगह पर जाएंगे, जैसे पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ ठंड होती है। ओके, सेम प्रेशर एंड विंड्स, जिस तरफ एयर प्रेशर कम होता है तो उसी तरफ हवा विंड क्या करती है, ब्लो करती है, और कहाँ से, हाई प्रेशर की तरफ से। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो एरिया सी के जितने पास होगा वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस इवन रहेंगी, और जैसे जैसे आपका डिस्टेंस सी से बढ़ता चला जाएगा वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन उतनी ओड हो जाएंगी। ओशन करंट्स हैं ये भी काफी, और रिलीफ फीचर्स ये भी काफी इफेक्ट डालती हैं क्लाइमेट कंट्रोल। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जानते हैं कि जो इंडिया में जो मेन मानसून जो रेनफॉल होता है दैट इज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बोलते हैं उनको, उन्हीं की वजह से होता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया इन्हीं मानसून से जो बारिश होती है। उसके बाद अपर एयर सर्कुलेशन इन विंटर, जनरली इन विंटर जो 27 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं, दैट इज कॉल्ड अपर एयर सर्कुलेशन, और यू कैन से द जेट स्ट्रीम्स। ओके, सारा साल वो हिमालय के नॉर्थ में जाते हैं, लेकिन विंटर सीजन में ये हिमालय के साउथ में आ जाती हैं। और इसी की वजह से आप जानते हैं कि सर्दियों में नॉर्थ इंडिया में बारिश भी होती है। इन लोकल लैंग्वेज इज कॉल्ड मावट। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, तो विंटर में इसी एयर सर्कुलेशन की वजह से बारिश होती है। ठीक है, मानसून सीजन स्टार्ट कब होता है इंडिया में, दैट इज जून। ओके, जून में स्टार्ट होता है, और बर्स्ट ऑफ द मानसून मीन्स बहुत तेजी से जब बारिश होती है। रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, सितंबर में जो क्लाइमेटिक कंडीशन एकदम चेंज हो जाती हैं और उसको बोलते हैं पीछे मानसून, तो मानसून जो सीजन है वो ऑफ हो जाता है। एल नीनो इफेक्ट ये 4 से 5 साल में एक बार होता है। देखिए अभी जैसे हमने बात की थी अभी हमने बात करी थी ओशन करंट्स की, तो प्रेशर विंड्स किस तरफ मूव करती हैं, जिस तरफ एयर प्रेशर कम होता है। तो समटाइम 4-5 सालों में क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया में जो प्रेशर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो विंड डायरेक्शन है वो सी टू लैंड होती है, लेकिन एक हॉट वाटर ओशन करंट वो इंडियन ओशन में भी चलने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है दोनों तरफ लो प्रेशर बन जाता है, तो जिसकी वजह से जो मॉनसून जो विंड्स हैं वो जनरेट हो ही नहीं पाती है, तो उसको बोलते हैं मॉनसून फेलियर। उस टाइम पे बारिश बहुत कम होती है, दैट इज कॉल्ड एल नीनो इफेक्ट। ओके, नाउ द सीजन, देयर आर 4 सीजन्स। द कोल्ड वेदर सीजन, अभी ये जो आ रहा है सीजन अभी एट प्रेजेंट, तो ये कोल्ड वेदर आ रहा है।
एक होता है हॉट वेदर अभी गया है, एडवांसिंग मानसून, एक मानसून सीजन होता है, एक रिपीटिंग मानसून होता है। ओके, नेक्स्ट इज ड्रेनेज सिस्टम। देखिए ड्रेनेज क्या होता है, इन सिंपल लैंग्वेज एक रिवर अपने साथ जितने एरिया का पानी अपने साथ फ्लो करके ले जाती है, दैट इज कॉल्ड द ड्रेनेज। ड्रेनेज सिस्टम इज डिफाइंड एज द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ओके, तो मेजर रिवर सिस्टम कौन से होते हैं, जो अराउंड 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया को कवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेजर रिवर सिस्टम। और इंडिया में ये 14 है। मीडियम रिवर सिस्टम है 2000 टू 20,000 स्क्वायर किलोमीटर कवर करते हैं, और ये रिवर सिस्टम इंडिया में 44 है। और माइनर बिलो 2000 स्क्वायर किलोमीटर ये है 55। तो इंडिया में टॉप 5 में रिवर सिस्टम कौन से हैं, फर्स्ट द गंगा, देन इंडस, देन गोदावरी, देन कृष्णा एंड देन ब्रह्मपुत्र। इनका एरिया भी मैंने ब्रैकेट में दे रखा है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है द हिमालयन रिवर। Himalayan river, there are 3 systems, that is the Indus river system, Ganga river system and the Brahmaputra river system. जो Indus river system इसकी टोटल लेंथ है 2,880 किलोमीटर, और जिसमें से 709 किलोमीटर इंडिया में रहती है। ठीक है, और बोगराचू ग्लेशियर से तिब्बत रीजन के पास मानसरोवर लेक से ये स्टार्ट होती है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलुज, ब्यास, झेलम, चेनाब एंड रावी, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान में एक इंडस रिवर एक ट्रीटी हो रखी है कि भारत इन जो इंडस, झेलम और चेनाब रिवर का सिर्फ 20% जो वाटर है वही यूज कर सकता है। देन गंगा रिवर सिस्टम, इसको भागीरथी स्टार्ट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, गोमुख से। उसके बाद देवप्रयाग में ये अलकनंदा रिवर से मिल जाती है, और तब इसको गंगा बोलते हैं। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र रिवर उसके बाद है ब्रह्मपुत्र, इसकी जो लेंथ है दैट इज 2,525 किलोमीटर लेंथ है इसकी। एक मिनट, मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया है इसमें, मैं भी कर देता हूं इसको। ओके, और गंगा की जो लेफ्ट बैंक में जो ट्रिब्यूटरीज है दैट इज राम गंगा, गोमती, काली, गंडक, कोसी, महानदी। और राइट बैंक यानी राइट साइड में जो रिवर है दैट इज यमुना एंड सोन। दीज आर द 2 ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। जो कोसी रिवर है दैट इज आल्सो कॉल्ड द सोरो ऑफ बिहार, क्योंकि कोसी रिवर में हर साल बाढ़ आती है, और जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो जाता है बिहार में life and property का, that is why it is called the sorrow of Bihar. And Damodar river is also called the sorrow of Bengal. The same condition in Bengal. The Brahmaputra river system, अगर volume wise देखे जाए, volume wise means the capacity of water, तो इंडिया की जो largest river that is ब्रह्मपुत्र है। नामचा बारवा से ये भारत में एंटर करती है चीन की तरफ से, पहले चीन में फ्लो करती है, उसके बाद नामचा बारवा जगह आती है, वहां से ये यूटर्न लेके भारत में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। इसको अलग अलग नाम है, देहांग और सियांग। अरुणाचल प्रदेश में इसको देहांग या सियांग बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं इसको आसाम में, और बांग्लादेश में जब एंटर कर जाती है तो वहाँ इसको जमुना बोलते हैं। और जब ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर दोनों मिल जाती हैं तो ठीक है ना, एक दरिया में बहुत बड़ी एक रिवर बन जाती है। इसकी जो दोनों रिवर्स को मिलकर जब इसको बोलते हैं मेघना। ओके, तो राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं सिवनसिरी, घेरली, मानस, संकोच, तिस्ता एंड रायदा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दिहांग, लोहित, ब्रूही, दिहांग, धनसिरी, कलंग, कपिली। ओके, और ब्रह्मपुत्र लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिवराइन आइलैंड बनाती है, और सबसे बड़ा जो आइलैंड है दैट इज मुजिली। कुछ रिवर्स भी जो आइलैंड बनाती हैं तो उसी को बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। Next is the peninsular river system. Peninsular river system, the east flowing rivers और delta form, ये दो तरह की रिवर जो ईस्ट में इस डायरेक्शन में फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है।
ठीक है, और या वो डेल्टा बनाती है। तो ये रिवर्स हैं महानदी, ओके, महानदी 885 इसकी लेंथ है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं मान, हसदेव, सोनाक, ओंग, जोंग, ठीक है। इसी तरह से गोदावरी दैट इज 1465 किलोमीटर, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। कृष्णा 1290 किलोमीटर, कावेरी इसको साउथ इंडिया की गंगा भी बोलते हैं, इसकी लेंथ जो है 765 किलोमीटर है, ठीक है ना। और ये सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल भी बनाती है शिव सुंदरम, ओके, इंडिया में। उसके बाद है वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो हैं साबरमती, माही, नर्मदा, तापी एंड लूनी। नर्मदा 1300 किलोमीटर है, और अमरकंटक प्लेटू से ये ओरिजिनेट होती है। इसी तरह से जो तापी है 700 किलोमीटर की लेंथ है। नेक्स्ट इज drainage system in India, the Himalayan river system and the Peninsular river system। तो हिमालयन रिवर सिस्टम है, ये पेरिनियल है, मीन्स सारा साल ये बहती रहती है, इनमें पानी रहता है, ठीक है ना। और ये बड़े बड़े जो प्लेन बनाती हैं, डेल्टास बनाती हैं, ठीक है ना। और काफ़ी यहाँ से नहरें हैं, और हाइड्रो जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ भी काफ़ी बनाए जाते हैं। और पेनिनसुलर इंडिया, अभी जो इंडिया जो साउथ इंडिया में है रिवर्स, ठीक है ना, वो सारा साल नहीं बहती, ओनली दे आर सीजनली, मतलब मानसून सीजन में पानी रहता है, अदरवाइज में पानी नहीं रहता है, ठीक है ना। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, सो रिसोर्सेज क्या होते हैं? एवरीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। हर वो चीज जो हमारे काम की है वो रिसोर्स है, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज on the basis of origin, biotic and abiotic। Biotic means resources which are made up from living things, yes, human beings, plants, okay, animals, these are biotic। Abiotic, the resources which are made up from non-living thing on the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable। Renewable means जिनको बार बार यूज किया जा सके, which can reproduce within a short period of time। non-renewable, जिनको रिन्यू करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, फॉसिल फ्यूल्स, हाँ जी, फॉसिल फ्यूल्स है। देखिए फॉसिल फ्यूल को भी रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगता है। फॉसिल फ्यूल को आप रिन्यू कर सकते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल को बनाने में आपको 1000 ईयर्स लग जाएंगे, अब 1000 ईयर्स तक कौन बैठेगा, है ना। तो इनको रिन्यू टाइम, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, थाउजेंड्स और मिलियंस, ठीक है ना। तो इनको कहने का मतलब कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है, रिन्यूएबल में टाइम नहीं लगता है। जैसे रिन्यूएबल का आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, आप प्लांट ले लीजिए, आपने काटा उसको 2 महीने में फिर प्लांट तैयार है ना। आप उसको 1 साल में 2 साल में, मतलब कम टाइम में उसको बना सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल विच बिलोंग टू अ पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल्स। इंडिविजुअल जो आपके पर्टिकुलर किसी आदमी का या ग्रुप ऑफ पीपल्स का होता है। कम्युनिटी रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कोई पार्क हो गया, रोड हो गया, है ना, पार्क है, मार्केट है ना बेटा, तो ये कम्युनिटी के रिसोर्सेज हैं। हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ये कम्युनिटी के हैं, राइट। उसके बाद है नेशनल, जितने भी मिनरल्स हैं, वैसे तो देखिए नेशनल जो रिसोर्सेज हैं, पूरा देश ही नेशन से बिलोंग करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं भी किसी से कुछ भी ले सकती है, लेकिन जनरली जो नेशनल रिसोर्सेज में आता है, मिनरल, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन 12 नॉटिकल माइल्स और 19.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, यानी समुद्र के किनारे से लेकर 20 किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर तक वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। जितने भी रिसोर्सेज, मान लीजिए कि आपका घर है, ठीक है ना, और आपके घर, जहाँ आपका घर है वहां पर कोई गोल्ड माइन हो जाती है वहां पर, ठीक है, या वहां पर ऑयल निकल जाता है, तो आप ये मत कहिएगा कि ये जमीन मेरी है तो ये मेरा हो गया ये रिसोर्स, नहीं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ वो गवर्नमेंट का है। मान लीजिए आपके घर के अंदर से कोई ट्रेजर निकल जाता है, कोई खजाना निकल जाता है बहुत सारा सोना निकल जाता है,
तो अगर अकॉर्डिंग टू रूल वो किसका होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। वो बात अलग है कि हम बताते नहीं है, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल। देखिए इंटरनेशनल क्या होता सर है। हाँ जी बोलिए। सर अगर हिस्टोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रिसर्च करते रहते हैं हिस्ट्री के बारे में, और उन्हें सर्च करते करते उन्हें ट्रेजर मिल जाता है, तो वो तब भी गवर्नमेंट का होगा। बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। तो मैंने जिसने बताया ना, थोड़ा सा ऊपर से करने नहीं मिलता। उनको देखिए उनका काम है बच्चे, अगर वो सर्च कर रहे हैं तो वो उनका काम है, अगर वो मिल जाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। तो उन्हें थोड़ा थोड़ा परसेंट नहीं मिलता, जैसे अगर पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर 90% ले लिया तो 10% उनका। वो इनकम टैक्स में तो है, शायद 10% है, लेकिन मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन होता वो, आप ये माने कि वो एक नेशनल प्रॉपर्टी है। वो बाद में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी 10% देती है 20% देती है वो नहीं पता है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मतलब इस तरह का बता देते हैं। अगर आपके घर में निकल जाए तो आप भी नहीं बताओगे, उसको दबा के बैठ जाओगे। जनरली होता है ऐसा जगह, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, 200 नॉटिकल माइल एवरी, जो कंट्री है उसके बॉर्डर से, कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल के बाद जो एरिया था वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी होता है, उसके किसी एक देश का उस पर कब्जा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल। ये वो रिसोर्सेज है जिनको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है, हमारे पास हैं लेकिन इनको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है। डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी जिनकी हमें पता होती है और जिनको हम यूज कर रहे हैं, दैट इज दोज आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्सेज। स्टॉक कौन से होते हैं, स्टॉक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी यूज करने की एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमारे पास होती नहीं है, ठीक है। और रिजर्व्स वो होते हैं जिनको अभी तक यूज नहीं किया गया है, इनका यूज अभी स्टार्ट नहीं किया गया है, ठीक है। सर तो फिर पोटेंशियल और रिजर्व्स में क्या डिफरेंस है? सर रिजर्व सर इसके फ्यूचर के लिए होता है सर से। हाँ जी, और सर पोटेंशियल जो अभी यूटिलाइज नहीं होगा, नहीं हमारे पास होगा, टेक्नोलॉजी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन इनको यूज नहीं किया गया है। एंड सर नेक्स्ट रिजर्व के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है सर। ओके सर। जैसे जैसे थ्योरियम है बेटा, थ्योरियम है वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है लेकिन उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, ठीक है। यूरेनियम की है, थ्योरियम की नहीं है। या कुछ टेक्नोलॉजीज हैं लेकिन बहुत महंगी हैं जो जनरली जिसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में, गुजरात में सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, उसको यूज कर सकते हैं लेकिन उनको सेटअप करने के जो प्लांट है वो बहुत महंगे पड़ते हैं। यस सर, यानी डैम हो गए। टेक्नोलॉजी अभी, हाँ टेक्नोलॉजी अभी सस्ती नहीं है, ठीक है ना। यस अभी सर। आप इलेक्ट्रिक कारें देखिए, इलेक्ट्रिक कारें देखिए बहुत महंगी पड़ती हैं कारें, है ना। यानी हमारे पास हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन एक जो मतलब स्टिक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ना, वो हमारे पास अभी है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल के बारे में जानते हैं, कई तरह की सॉइल है हमारे पास। सबसे बेस्ट जो सॉइल होती है वो ऑलिवल सॉइल होती है, ठीक है ना। और जो ब्लैक सॉइल है दैट इज वेरी गुड फॉर कॉटन ग्रोथ। रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन कब होता है, जब हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, बार बार ग्रो करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हवा या पानी की वजह से जो टॉप मोस्ट सॉइल होते हैं वो उड़कर ही दूसरी जगह पर चली जाती है, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो सॉइल को कंजर्व कैसे किया जाए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, काउंटर फ्लोइंग करनी चाहिए आपके में, ठीक है। हम मेन उस पर डिस्कस करेंगे। वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। देखिए वाटर रिसोर्सेज आप देखते हैं बहुत सारे रिवर्स हैं, ठीक है, और इतना सारा पानी है हमारे पास फिर भी हमारे यहाँ पानी की कमी है। तो सीधा सीधा इंडिकेशन होता है दैट मीन्स कि मैनेजमेंट में कमी है। मैनेजमेंट मीन्स हम सर पानी रेन को वाटर बहुत हार्वेस्ट। ज्यादा गंदा भी कर देते हैं, हम रेन
वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं। गवर्नमेंट कहती है हार्वेस्ट कीजिए, पानी को बचाइए। इवन हम वेस्ट भी बहुत करते हैं, बच्चे वेस्ट भी बहुत करते हैं, ओवर यूज भी बहुत करते हैं। आप जनरली अपनी गाड़ी को वॉश कीजिएगा। गाड़ी आजकल आ गया, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है ड्राई वॉश। आपने देखो एक ड्राई वॉश टेक्नोलॉजी है जिसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता गाड़ी को वॉश करते हुए। जनरली अगर आप अपने घर में गाड़ी धोते हैं तो कितना पानी वेस्ट करते हैं। इवन अगर आप नहाते भी हैं, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा पानी वेस्ट करते हैं। कई बार आप टैप ऑन करके चले जाते हैं, है ना, बाल्टी में पानी गिरता रहता है, ठीक है ना। तो ये मैनेजमेंट की कमी है। समटाइम्स आपने देखा होगा पब्लिक जो टैप हैं वो टूट जाते हैं, पानी वहां से बहता रहता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये वाटर मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन। आपने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट किया होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना। तो ये कई तरह के फॉरेस्ट होते हैं। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। नॉर्मल जो जनरली आप देखते हैं आपके आसपास जो एनिमल्स हैं जिनकी क्वांटिटी नंबर नॉर्मली रहता है, ठीक है ना। एंडेंजर्ड यानी जो खतरे में आ गए हैं, जिनकी जो नंबर है वो तेजी से घट रहे हैं। वल्नरेबल पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जा रहे हैं, बाकी हर जगह से खत्म हो गए हैं। रेयर मीन जो बहुत ही कम नंबर रह गए हैं जिनके, है ना। एंडेमिक मीन्स सिर्फ एक एरिया में है, एक्सटिंक्ट मीन्स अब खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इनका बहुत माइनर सा डिफरेंस है, तो इसको बड़े आराम से कीजिएगा, इसको समझ के। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव होता है जो एक, हाँ जी सर, मतलब पूरे वर्ल्ड पे से कितना परसेंट सर शुद्ध पानी है? देखिए 97 तो ओशन में ही है, 97.2.3 जिसमें अंडरग्राउंड, आइस शीट्स और रिवर्स ये सब आ जाता है। बाकी 97 जो है बट सर ये फ्रेश ocean के वाटर, अंदर। सर जो पोर्टेबल वाटर है सर वो तो 0 पॉइंट समथिंग है सर, वो बहुत कम है। हाँ जी, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन वो भी अगर हम उसको मैनेज सही कर लें बच्चे, तो वो भी हमारी जरूरतों को बहुत पूरा कर सकता है। हमारी जरूरतों के लिए वो भी बहुत है, लेकिन हम क्या करते हैं, वेस्ट बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, ओवर यूज करते हैं। आप चेक कीजिएगा आपने 24 घंटे में कितना पानी वेस्ट किया। आप सभी बच्चे जितने भी हैं प्लीज एक बार ये चेक कीजिएगा कि आप दिन में कितना पानी वेस्ट करते हैं। इवन अगर आप एक गिलास पानी पीते, नहीं कि पानी लीटर में होता है बच्चे, केजी में नहीं होता। एक बार चेक कीजिएगा कि आज आपने, हाँ, कल सुबह जैसे ही आप उठें तो आप एक बार चेक करना कि आज आपने पानी कहाँ कहाँ वेस्ट किया, आपको पता चल जाएगा। वो जो आप बता रहे हैं 0.3% जो वाटर है, फ्रेश वाटर अवेलेबल है, ये भी बहुत ज्यादा है हमारे लिए, ठीक है ना। लेकिन मैनेजमेंट हमारा बहुत खराब है। इवन हम खुद की जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो कम पड़ जाता है। देखिए गांधी जी ने एक बात कही थी, आपकी ज्योग्राफी में ही है, कि हमारी जरूरत के लिए हर रिसोर्सेज बहुत है। हमारी जरूरत के लिए इस अर्थ पर सभी रिसोर्सेज सफिशिएंट है, लेकिन हमारी लालच के लिए बहुत कम है ना। हमारी सर जो ग्रीड है सर वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल उसको, हाँ बिल्कुल। तो बच्चे अगर आप वेस्ट नहीं करेंगे तो हर चीज प्लेंटीफुल है हमारे पास। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव। ये मार्केट पर्पस के लिए नहीं की जाती है, ये सिर्फ खुद के उसके लिए की जाती है। और कमर्शियल फार्मिंग होती है जब आप क्रॉप ग्रो करते हैं स्पेशली पर्पस फॉर मार्केट। पर्पस क्या होता है, मार्केट में सेल आउट करने के लिए। ओके, तो क्रॉपिंग पैटर्न होता है, 3 क्रॉपिंग पैटर्न हमारे पास, रबी, खरीफ एंड जैद। रबी जो अभी जो फसलें अभी खेतों में बोई जाएंगी ना, तो ये रबी की हैं। खरीफ वो फसलें होती हैं जब मानसून सीजन स्टार्ट होता है, तो जो फसलें बोई जाती है उसको खरीफ बोलते हैं। जैसे राइस है,
अभी राइस का टाइम है, कटिंग का टाइम है, ठीक है। अभी देखेंगे पराली वगैरह जलाते रहते हैं लोग, है ना। और जैद सीजन होता है, जो रबी और खरीफ के बीच का जो सीजन होता है ना, तो उसको जैद सीजन बोलते हैं। ये अभी जैद चल रहा है, अक्टूबर नवंबर का सीजन जो है ये जैद है। इसमें जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं या जो सब्जियां हैं, इनको उगाया जाता है। तो मेजर क्रॉप्स हैं हमारी राइस, व्हीट, मिलेट, मेज एंड पल्सेस। दीज आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। फूड जो दूसरी है, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी। यहाँ पर ये वो फूड क्रॉप्स हैं जो कमर्शियल उसके लिए यूज की जाती है। जैसे इंडिया है लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, ठीक है ना। ऑयल सीड से ये भी सर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। असम है सर टी का तो। हाँ जी, अरे बेटा बहुत जगह हैं। देखिए टी आसाम, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो टी है वो कहाँ पर ग्रो की जाती है। आसाम में ग्रो की जाती है। जितने भी नॉर्थ ईस्ट, देखिए आसाम में लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है। जितने भी नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स है ना, 7 सिस्टर्स बोलते हैं, सब में। इवन वेस्ट बंगाल में ग्रो की जाती है, हिमाचल प्रदेश में की जाती है, जम्मू कश्मीर में की जाती है, तमिलनाडु में की जाती है, ऊटी सुना होगा आपने, नीलगिरी हिल्स हैं वहां पर की जाती हैं। अभी हम करेंगे, आगे आएंगे, ठीक है ना। तो केरला में भी की जाती है, कर्नाटक में भी, जितने भी हिल स्टेशन वहां पर ग्रो की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर की जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। नॉन फूड क्रॉप्स, कॉटन, जूट एंड सिल्क। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। और सिल्क को ग्रो नहीं किया जाता, रेशम के जो जो वो होते हैं, कीड़े होते हैं, वो पाले जाते हैं, उससे सिल्क लिया जाता है। तो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होते हैं। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत काफी चेंजेस आ गए, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं। फार्मर्स को भी काफी फैसिलिटी दी गई है, अच्छी क्वालिटी के बीज हैं और अच्छी क्वालिटी के जो एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और किसानों को जो लोन दिया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड है, ये कुछ ऐसे हैं, सैटेलाइट्स हैं, है ना। तो ये फार्मर्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो ये टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं। There are 3 revolutions, that is green revolution। सबसे पहले इसी को किया था, जिसमें जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फार्मर्स एचआईवी सीड्स है। हाँ जी, हाई यील्डिंग क्वालिटी की जो सीड्स दिए गए, बेस्ट क्वालिटी के टूल्स दिए गए, है ना। और किसानों को काफी फैसिलिटी दी गई। व्हाइट रिवॉल्यूशन स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और ब्लू रेवोल्यूशन किसको स्टैंड करता है बताइए? ब्लू रेवोल्यूशन किस फील्ड से रिलेटेड है? ब्लू रेवोल्यूशन किस फील्ड से रिलेटेड है? ग्रीन रेवोल्यूशन है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी गेहूं और व्हीट एंड राइस के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। व्हाइट रेवोल्यूशन स्टैंड्स फॉर मिल्क। और ब्लू रेवोल्यूशन सर फिश। वेरी गुड। तो ब्लू रेवोल्यूशन स्टैंड्स फॉर फिश, राइट। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है एक लो वैल्यू प्रोडक्ट को हाई वैल्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। क्या हुआ था बेटे? फिश की प्रोडक्शन को बढ़ाना। ओके सर वे तो क्या करते हाँ थे, जी, एक पार्टिकुलर नहीं, जब फिशिंग होती थी तो फिशिंग के टाइम में फिशिंग करते हाँ। थे, लेकिन पार्टिकुलर टाइम आता था जब पानी नॉर्मल देखिए रहता था, अब एक मिनट, छोड़ दिया जाता एक था। मिनट बेटे। अभी जो जनरली पहले क्या होता था, जो नदी के आसपास या जो कोस्टल एरिया, समुद्र के आसपास, वहां फिशिंग होती थी। लेकिन अब क्या है, आर्टिफिशियल टैंक में वहीं पर जो फिशेज हैं वहां पर पाली जाती हैं, है ना। अब आप देखिएगा लोगों ने इसका एक बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन बना लिया है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मींस वो इंडस्ट्री जिनको रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जहाँ पर रॉ मटेरियल मिनरल्स हैं को यूज करते हैं एज रॉ मटेरियल, ठीक है ना। और रोल प्लेड बाय द इंडस्ट्रीज, यानी बेसिक और की इंडस्ट्रीज, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो जिनका प्रोडक्शन दूसरी इंडस्ट्रीज के काम आता है, उसको बोलते हैं बेसिक या की इंडस्ट्रीज। ओके। और कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो प्रोडक्शन सीधा कंज्यूमर के यूज के लिए बनाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लार्ज स्केल एंड, ठीक है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, आपने देखा होगा कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज, पब्लिक इंडस्ट्रीज, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव। ओके।
और एक होती है बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जिनमें बहुत भारी भारी सामान मिलता है, बल्कि वेट ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। एक बहुत भारी भारी इंडस्ट्री बनाती है और एक छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाती है, जैसे ट्रक वगैरह है, ऑटोमोबाइल है, बहुत बड़े बड़े बल्कि प्रोडक्ट बनाते हैं ना। नेक्स्ट इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। देखिए जितने भी मिनरल्स हैं आप उनको बना नहीं सकते, पहली बात है, क्योंकि इनकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, मतलब इनकी केमिकल कंपोजिशन इसी उससे बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो वेन्स होते हैं जहाँ स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो पाए जाते हैं, और आयोड्स होते हैं जहाँ लार्ज क्वांटिटी में मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स दो तरह के होते हैं, एक मेटेलिक होते हैं, एक नॉन मेटेलिक होते हैं। मेटेलिक में तीन तरह के हैं, फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस। फेरस हैविंग द पार्टिकल ऑफ आयरन, नॉन फेरस मींस कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, और प्रीशियस जो बहुत महंगे होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। नॉन मेटेलिक में यानी मेटेलिक क्वांटिटी होती है जैसे माइका, साल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट। इनमें से माइका आप देखते हैं आपके घरों में जो टेबल चेयर होती है जहाँ पर प्लाई लगी हुई होती है, ठीक है ना, बेड वगैरह पे, तो उसकी जो टॉप लेयर होती है, इवन अगर आपने स्विचेस देखे हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस देखोगे ना, तो उसके ऊपर जो टॉप लेयर लगती है वो माइका की होती है। ओके, तो एनर्जी रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज जिनको हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर, इनको हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज मींस जो हमने अभी पिछले 30-40 सालों से यूज किए हैं, वो मतलब नए हैं वो, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है ना। सर तो इन ये सब नए में हैं टेक्नोलॉजी नहीं आई है सर, उसके वजह से ही आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इनको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल, यानी बिल्कुल नए सिरे से हम इनको यूज करते हैं। पहले इनका यूज नहीं होता था, ये बिल्कुल अभी हाल ही में इनको यूज किया जाने लगा। अभी आप देखिए सोलर गाड़ियां भी आती हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, देखा आपने कभी? इन सब की अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे तो आप सबको इस पे मिल जाएगा कि टाइडल एनर्जी कैसे होता है, जियोथर्मल एनर्जी कैसे काम करती है। सर देखा है। तो ये सब नया है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन देखिए, जनरली हम इंडिया में पॉपुलेशन की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि भाई पॉपुलेशन तो बहुत ही खराब गलत चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन एक जरूरी चीज है, जरूरी हमारी हर, देखिए कोई भी चीज अगर ज्यादा होगी तो वो नुकसान देगी, तो यही इंडिया के मामले में हो रहा है। हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन जरूरी भी है, ठीक है ना, क्योंकि इकोनॉमिक और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए पॉपुलेशन जरूरी है। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? जब हमारी कंट्री के जो नंबर्स में लोगों की जो चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, तो पॉपुलेशन ग्रोथ, हाँ जी सर इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा है। पॉवर्टी ज्यादा है, और अगर आप किसी भी तरीके से देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, देयर इज पॉपुलेशन इज द रूट कॉज ऑफ एवरी एंड ईच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आप कोई भी प्रॉब्लम लेंगे तो उसकी जड़ क्या है? पॉपुलेशन है, ठीक है ना। पॉपुलेशन चेंज या ग्रोथ होता है बर्थ रेट, डेथ रेट या माइग्रेशन। जब बच्चे पैदा होते हैं तो भी पॉपुलेशन चेंज होता है या ग्रोथ होता है, जब मर जाते हैं लोग तो भी पॉपुलेशन में चेंज आता है। और माइग्रेशन मींस मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और वही सेटल हो जाते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड माइग्रेशन। ओके, एज कंपोजिशन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एज कंपोजिशन। चिल्ड्रन, जैसे आपकी एज में, इनको नॉन प्रोडक्टिव बोलते हैं, ये टोटली डिपेंड करते हैं अपने फादर पेरेंट्स पर। वर्किंग 15 to 59, ये मेन रीड होता है, किसी भी पॉपुलेशन का मेन पार्ट यही होता है। और एज अबव 59, ये भी बड़ों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन कुछ लोग 59 के बाद भी काम करते हैं। सेक्स रेशियो होता है कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, यानी आदमी और औरतों की संख्या, मैन एंड वुमेन, कि औरतें कितनी है पर 1000 मेल पर फीमेल कितनी है। लिटरेसी रेट, हमारे यहाँ पर लिटरेसी रेट क्या है, जनरली शुरू से ही देख रहे हैं
अभी लिटरेसी रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, दैट इज अबाउट 75, और बट जो वुमेन की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारे यहाँ 3 तरह के ऑक्यूपेशंस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर। इन्हीं में लोग काम कर रहे हैं। प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, और टर्सरी मीन सर्विस सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं। जो मैक्सिमम लोग हैं अभी प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, मोर देन 60%। और नेशनल जो पॉपुलेशन पॉलिसी है, देखिए फैमिली प्लानिंग, अभी एक बच्चे ने कहा कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, तो फैमिली प्लानिंग हमारे यहाँ क्या है कि जो फैमिली का जो साइज है बड़ा रहता है। जनरली आपने भी एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे टीवी वगैरह में कि भाई अपने फैमिली का जो साइज है वो छोटा रखें। तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो मेल को यूज करने पड़ते हैं, कुछ फीमेल्स को यूज करने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होती। दैट इज कॉल्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। ठीक है। उसके बाद है जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, ये डिस्कस करता है फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन। 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है। अब इसको और बढ़ा दिया, ग्रेजुएशन तक कर दिया गया ये सिस्टम फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए। उसका नेक्स्ट जो एम है वो है रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी मींस डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिफोर 1 ईयर। 1 साल से जो कम बच्चे मर जाते हैं पैदा होने के बाद, उसको भी कम करना है। ये भी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का एक पार्ट है। उसके बाद है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, यानी आजकल आपने देखा होगा जो यंग जनरेशन है उनको, उनमें इम्यूनिटी की बहुत कमी है। एक तो उनका अच्छी तरह से वो खाते नहीं है, अच्छा खाना नहीं खाते हैं। जनरली आपने देखा होगा, इवन आप भी चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, इनके अंदर सिर्फ क्या होता है कि ये सब आपकी इम्यूनिटी को वीक करते हैं। जंक फूड, ठीक है ना। हाँ, जंक फूड, ये सब आपकी इम्यूनिटी को वीक करते हैं। तो जो पेरेंट्स को भी ये कहा है कि अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं, अच्छी कैलोरी मिले, और जितना आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी आप उतना ही स्ट्रॉन्ग सर्वाइव कर पाएंगे सोसाइटी में। और एक दूसरा पार्ट इसका है कि सभी जितनी भी जो खतरा बीमारियां हैं, डिजीज हैं, उनसे बचने के लिए जितने भी आपको जो डोजेस दिए जाते हैं, है ना, जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, बचपन में भी आपने देखो लगे भी होंगे, बच्चों को लगाए भी जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखिए टीवी वगैरह में। जैसे अभी किस बीमारी को से बचने के लिए जो आपको इंजेक्शन लग रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए इंजेक्शन लग रहे हैं ना, तो ये भी जो है सबका जो वैक्सीनेशन सबका हो जाए, तो ये भी इसमें ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग डिलेड मैरिज, यानी ये बच्चों को ये मतलब बोला जाता है कि आप थोड़ा लेट शादी करें, जल्दी शादी ना करें। अराउंड 25 to 30 इयर्स के बीच में शादी करना चाहिए, तो बच्चे अपने पैर पर स्टैंड हो जाए। और इसमें एक चीज हो रहा है अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है ना, दैट इज स्पेशली फॉर जो यंग जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उनसे बचने के लिए भी इस नेशनल पॉपुलेशन में फोकस किया गया है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन 3 तरह का होता है, लैंड में रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन, सेकंड वाटर एंड एयर। रोडवेज में आपने देखा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जिसे बोलते हैं, NHAI इसको मेंटेन करता है। सेकंड है नेशनल हाईवे, CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसको करता है। उसके बाद स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड अदर रोड्स। तो इंडिया का सबसे लंबा हाईवे है, दैट इज नेशनल हाईवे नंबर 44, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है ये। ओके। पाइपलाइन एक नया ट्रांसपोर्टेशन है, और इसके थ्रू जो लिक्विड है मटेरियल वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस, ये इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक बार इसको बनाने में, मतलब पाइपलाइन बिछाने में टाइम लगता है, उसके बाद इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत मिनिमम होता है। तो 3 पाइपलाइंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आसाम से कानपुर, सलाया से जालंधर पंजाब में, और हजीरा गुजरात से जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में। वाटरवेज 2 तरह के होते हैं, इनलैंड पर हैं या लेक्स हैं, ठीक है, और ओवरसीज होता है जो इंटरनेशनल जो होते हैं पोर्ट्स के थ्रू।
बाद में जितने पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स के थ्रू जो व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ठीक है ना, दैट इज ओवरसीज, राइट। उसके बाद एयरवेज, एयरवेज में हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन होते हैं, ठीक है। तो आप जानते होंगे इसकी एडवांटेज क्या है। वाटर इज द चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एयरवेज सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट है, लेकिन इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। एक तो टाइम कम लेता है, ठीक है, और एक ये ऐसे एरियाज में भी जा सकता है जहां पर जाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है ना, कम समय में कहीं भी पहुंचा सकता है। उसके बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, एक पर्सनल होता है, एक मास कम्युनिकेशन होता है। पर्सनल होता है जब हम 1 to 1, जैसे मैं मोबाइल से आपसे बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक बच्चे से बात कर रहा हूँ, दैट इज पर्सनल। अभी मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, इट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन, ओके। और ये मास कम्युनिकेशन के कई मेथड, जैसे इंटरनेट है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, So बहुत तरीके का media. मास कम्युनिकेशन है। हाँ जी, मीडिया। और जैसे लेटर है पर्सनल का है, ठीक है, टेलीफोन भी पर्सनल है, ओके, ईमेल भी पर्सनल है, ओके। तो जैसे जो मूवी देखने जाते हैं आप, आपने मूवी देखी होगी, वो मास मीडिया है। और भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा मूवीज बनती है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये फिल्म को सर्टिफाई करती है। आपने भी देखा होगा जब मूवी स्टार्ट होती है तो उस पर एक बड़े से लेटर में लिखा था, ए रहता है, A/U लिखा रहता है, यू लिखा रहता है ना। तो वो सर्टिफिकेट का कैटेगरी होती है कि भाई ये मूवीज किस एज ग्रुप के लिए है, ओके। उसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल भारत का जो ट्रेड है वो बहुत ही अगर हम देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड हमारे फेवर में नहीं। इंडिया का जो ट्रेड है हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है वो ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। और जिस कंट्री का इंपोर्ट ज्यादा होता है वो कंपनी का जो ट्रेड है वो पॉजिटिव नहीं रहता, वो नेगेटिव हो जाता है। और हमारा जो जो इंपोर्ट है वो ज्यादा है, और उसमें भी सबसे ज्यादा कौन सी चीज आती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जो हम पेट्रोल यूज करते हैं सबसे ज्यादा हम इसी को इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो हमारे नेगेटिव हो जाता है। तो अभी मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो जो मोदी गवर्नमेंट है इस टाइम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका मेन एम यही है कि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है इसको कहाँ शिफ्ट कर दो, इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर दो। तो ये ट्राई कर रहे हैं कम से कम मतलब जो पेट्रोल प्रोडक्ट है उसको मंगवाने। और एक है टूरिज्म एज अ ट्रेड। देखिए भारत में बहुत ज़्यादा ऐसी जगह हैं जो बहुत अच्छी घूमने की हैं, और बहुत सारे लोग भारत में आते भी हैं घूमने के लिए। तो आपने भी देखा होगा कई बार हम किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर दीवारों पर लिख दिया जाता है, कुछ लोग लिखते रहते हैं, ये गलत है। तो कुछ कंट्री देखो टूरिज्म इतना इम्पोर्टेंट है, कुछ कंट्री तो सिर्फ टूरिज्म पर ही चल रही है, जैसे सिंगापुर है। सिंगापुर में सिर्फ टूरिस्ट ही आते हैं, ठीक है ना, और वहाँ की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म ही है, ओके। तो भारत भी इस फील्ड में काफी बढ़ रहा है। और एक होता है मेडिकल टूरिज्म, आपने भी देखा हो। मेडिकल टूरिज्म क्या होता है बच्चों? सर बाहर मेडिकल से लोग टूरिज्म, आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, सस्ते हाँ दाम जी, में मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक डिजीज का जो ट्रीटमेंट है दूसरे देश में बहुत ज्यादा महंगा होता है, लेकिन भारत में बहुत सस्ता है, तो लोग यहाँ इलाज कराने के लिए जाते हैं, इसको बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। चलिए, ये जो आपका है ज्योग्राफी वाला पार्ट है ये खत्म हो गया है। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछिए। सर सबसे सर ज्यादा तीसरा poverty लेवल कौन बेटा एक एक करके बोलो। सर सबसे ज्यादा poverty कंट्री कौन सी है? सबसे ज्यादा पोर्ट कंट्री, यस सर। हाँ हाँ, देखिए ये जो अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, नाइजीरिया, कीनिया, घाना, जो अफ्रीकन कंट्रीज है ना ये बहुत ज्यादा पुअर है, बहुत ज्यादा गरीब। और सर तीस्ता रिवर मेनली कौन सी कंट्री में आती है, इंडिया में या बांग्लादेश? देखिए ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में फ्लो नहीं करते बेटा,
इनको इंटरनेशनल रिवर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल रिवर। जो 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज में जो बहती है नदियां, उनको इंटरनेशनल रिवर बोलते हैं। अब जैसे इंडस रिवर, हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिया की रिवर है, क्योंकि वो चीन में भी बहती है, तिब्बत में भी, फिर तिब्बत से इंडिया में आती है, इंडिया से फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ऐसे ब्रह्मपुत्र है, वो तिब्बत में निकलती है, ठीक है ना, उसके बाद भारत में जाती है, फिर बांग्लादेश में चली जाती है। तो इंटरनेशनल रिवर। और बोलिए सर मेरा कुछ क्वेश्चन है सर। आप पूछो बेटा। सर मेरा पहला क्वेश्चन था कि जब वो पहाड़ से यानी माउंटेन से जब पानी आते हैं हिमालय रेंज से, तो वो अपने साथ पेबल्स लेकर आते हैं, फाइन पार्टिकल्स जिसे कहते हैं। तो फाइन पार्टिकल्स में तो सिर्फ सॉल्ट ही होंगे ना, तो उससे मींस फर्टाइल कैसे होता है वो? बेटा आपने कभी कोई रिवर, आप कहाँ से बिलोंग करते हो बच्चे? सर नॉर्दर्न इंडिया से। नॉर्दर्न इंडिया में स्टेट कौन सा है आपका? सर बिहार। बिहार। कभी जो रेनी सीजन होता है ना, रेनी सीजन। यस सर। हाँ जी, रेनी सीजन में आप कभी विजिट कीजिएगा हरिद्वार को। आप वहां पर हरिद्वार में पानी देखेंगे ना, पानी में इतनी ज्यादा मिट्टी होती है, ठीक है बच्चे। जो रिवर है, जो पता है कितना लंबा कोर्स फ्लो, वो माउंटेन्स में बहती है, बहुत ज्यादा तेजी से बहती है। और जो आपने रिवर्स के अंदर देखा हो, जो स्टोन होते हैं वो सब गोल होते हैं, लगभग गोल होते हैं ना। तो वो रिवर पानी को, सॉरी पत्थर को धीरे धीरे वो काटती है, उसको इरोड करती है, ठीक है ना। तो उसमें हर तरह का मटेरियल होता है, फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं धीरे धीरे। और देखिए आपने कहा कि वो इतने फर्टाइल कैसे होते हैं, वो एकदम पाउडर नहीं होता बच्चा, ठीक है ना। उसमें हर तरह हर चीज होती है। जैसे इतने तरह के स्टोन्स हैं, स्टोन से तो मिट्टी बनती है बच्चे, ठीक है ना। उसमें 50 तरह के केमिकल्स होते हैं, उसमें जानवर भी हैं, उसमें पेड़ पौधे भी हैं। धीरे धीरे सब धीरे धीरे जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल वो सारे कुछ मिल जाते हैं। वो जो मिट्टी आप देखते हैं ना पानी के अंदर, उसमें सब कुछ होता है। उसमें वो सब चीज होती है जिसमें जो पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, इसलिए वो फर्टाइल होते हैं। उसमें सिर्फ मिट्टी मिट्टी नहीं होती, मिट्टी के अंदर सब कुछ होता है। कितने जानवर मर जाते हैं, उनके बॉडी के पार्ट्स छोटे छोटे सब उसी में मिल जाते हैं। और पूछिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। सर नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. था, सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो रिवर्स आते हैं हिमालय रेंज से या फिर कहीं और जगह से, तो वे लोग मतलब जो जाते हैं तो अलग अलग जगह पर नाम क्यों बदलता रहता है उनका? जैसे देखिए ये ब्रह्मपुत्र तो, का ही कितने सारे नाम बदलते हाँ हैं, जी हाँ जी गंगा हाँ जी। फिर बांग्लादेश में जाकर कुछ और नाम बदल जाता है। देखिए नाम एक लैंग्वेज है बेटा। एक ही चीज लीजिए, जैसे बच्चा, बच्चा जानते हैं, जैसे आप बच्चे हो, यस सर। पंजाबी में बच्चे को क्या बोलते हैं? पंजाबी में बच्चे को बोलते हैं जवाक, राइट। जुआक। हाँ जवाक बोलते हैं, राइट। हरियाणा में चले जाओगे, हरियाणा में बोलेंगे बालक, बालक यानी बच्चे, बालक, राइट। राजस्थान में चले जाओगे, उसको बोलते हैं टाबर, राजस्थान में उसको टाबर बोलते हैं। अभी लैंग्वेज है, ठीक है ना, चीज वही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। मैं अपनी लैंग्वेज में इसको कुछ बोल देता हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में आप कुछ ही बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ऐसा तो Sir, नहीं कि वो हमें मिलके उसका नाम चेंज हो जाता है? हाँ जी बोलिए। सर हमें पता है कि गंगा रिवर गंगोत्री से बहती है, पर जब आप पढ़ा रहे थे उसमें आपने लिखा था कि शायद गंगा अलकनंदा से मिलके भागीरथी में, आई मीन अलकनंदा किसी और रिवर से ट्रिब्यूटरी से मिलती हैं, और भागीरथी नहीं सॉरी देवप्रयाग में वो रिवर गंगा फॉर्म होती है, मतलब देवप्रयाग में गंगा उसका नाम पड़ता है। तो सर हम ये क्यों कहते हैं कि वो गंगोत्री से स्टार्ट, मतलब गंगा गंगोत्री से बहती है? देखिए जो गंगोत्री से जो रिवर निकलती है उसका नाम है अलकनंदा, ठीक है। और देव प्रयाग में आकर वो उससे मिलती है,
अलग इससे भागीरथी से। भागीरथी से मिलती है। तो इन दोनों नदियों को मिलाकर बोला जाता है गंगा। वैसे तो अलकनंदा को भी गंगा ही बोलते हैं, भागीरथी को भी गंगा ही बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो मेन गंगा रिवर है वो उसी से बनती है। सर तो उसका अलकनंदा भी है। ओरिजिन क्या हुआ सर? ओरिजिन आप अलकनंदा ही मानेंगे क्योंकि सबसे लंबी रिवर वही है, मेन सोर्स वही है, मेन रिवर। देखिए एक ट्रिब्यूटरी होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है। अलकनंदा मेन रिवर है, जबकि भागीरथी उसमें आकर, वो भागीरथी ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा, भागीरथी अलकनंदा में आकर मिलती है, तो मेन है अलकनंदा, इसलिए बोला जाता है गंगा का सोर्स क्या है, गंगोत्री। नेक्स्ट, सर इंडस का ओरिजिन क्या है? किसका? इंडस नदी का। ये सभी रिवर्स मानसरोवर लेक के आसपास से निकलती है, मानसरोवर लेक। आप देख लीजिएगा, मैंने ये क्लाउड पर डाला है, अगर कहोगे तो ये पीपीटी भी मैं शेयर करवा दूंगा सर से ग्रुप में, ठीक है ना। मानसरोवर का है। मानसरोवर लेक है तिब्बत, जो तिब्बत है ना, उत्तराखंड जो स्टेट है उसके ऊपर आप तिब्बत में देखेंगे, वहां मानसरोवर लेक है। जनरली जो रिवर्स है वहीं से ओरिजिनेट होती हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलुज, ये जितनी बड़ी बड़ी रिवर, हिमालयन रिवर, सब वहीं से जनरेट होती हैं। नेक्स्ट, सर हिमाद्री माउंटेन रेंज सबसे ज्यादा किस स्टेट में पाई जाती है? देखिए जो हिमाद्री है सबसे ज्यादा तो ये जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में, सॉरी हिमाचल में नहीं, इसमें क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। लेकिन हिमाद्री जो है वो नेपाल में ज्यादा पाया जाता है, नेपाल सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। और पूछिए। और सर उत्तराखंड में शिवालिक्स पाए जाते हैं या फिर हिमाचल पाए जाते हैं? उत्तराखंड में यस सर। शिवालिक, शिवालिक जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, पंजाब में पाया जाता है, और उत्तराखंड में भी, और सम पार्ट्स ऑफ यूपी में भी पाया जाता है, उसके बाद नहीं पाया जाता। और बोलिए। सर मुझे पूछना था कि जो आइडियोलॉजी होती है वो कैसे स्प्रेड होती है, मीन्स अगर मेरा एक आइडियोलॉजी है और उसे स्प्रेड करना है तो वो स्प्रेड कैसे होगी? क्योंकि अगर मैं किसी एक व्यक्ति को सुनाने जाऊंगा तो वो सुनेगा, अगर अच्छी भी लगी तो बस उसी तक सीमित रहेगी, लेकिन नहीं स्प्रेड नहीं ऐसा हो कुछ पाएगी। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आइडियोलॉजी ये डिपेंड करता है कि सामने वाला आपसे कितना इम्प्रेस है, ठीक है। अगर मेरी आपको कोई बात अच्छी लगती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब मेरा जिगर चलेगा तो आप मेरे बारे में किसी को बताएंगे कि भी हिस्ट्री पढ़नी है, जोरी वाले फलाने वाले सर के पास जाइए, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ऐसे बातें स्प्रेड होती हैं। और आज को मॉडर्न है कि आपके पास मीडिया की पावर बहुत ज़्यादा है, आपके पास बहुत सारे मीन्स हैं अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए, जितना आप फैला सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, कोई बुक है, अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, बहुत सारे लोग देखेंगे, और जो लोग देखेंगे श्योरली है कि वो लोग उसको स्प्रेड भी करेंगे। अब देखिए डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है ना। अगर मेरे को, आप देखिए कोई आपके पास व्हाट्सएप पे 50 तरह की वीडियोस आती हैं, बहुत सारे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भी आते हैं, कुछ लोगों को गुड मॉर्निंग के मैसेज देख के बड़ी खुशी होती है ना, गुड मॉर्निंग, अरे वाह, वो उसको आगे स्प्रेड करेंगे, है कि नहीं। कुछ लोग थॉट्स देते हैं, है ना, आपको अच्छे, कुछ लोग तो देखते इसको डिलीट कर देते हैं, देखते डिलीट करेंगे, गुड मॉर्निंग के मैसेज ही नहीं पढ़ेंगे, है ना। कुछ लोग उसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। तो हर तरह, हर कैटेगरी का व्यक्ति मिलेगा आपको, हर कैटेगरी का आदमी मिलता है, ठीक है ना। और आपकी जो आइडियोलॉजी जिसको ज्यादा पसंद है श्योरली वो स्प्रेड करेगा, क्योंकि उसने उसी इंटरेस्ट के साथ आपको भी तो देखा है, या आपके बारे में तो पढ़ रहा है वो, या सुन रहा है, तो जब वो स्प्रेड करेगा तो हाँ ये हो सकता है कि लेट देर सवेर हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन चीजें फैलती जरूर है, टाइम लग जाता है, टाइम तो लगेगा, और हर चीज। अब तो आपके पास बहुत सारे मीन्स हो गए हैं, मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है ना, देखो ना बहुत सारे लोग लाइक वगैरह करते हैं, ट्विटर है, हैं आपके चैनल बने हुए हैं,
तो बहुत सारे लोग। नेक्स्ट। ओके बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट सर। नाइट सर। गुड नाइट सर। Good night, sir. गुड नाइट Sir, good night, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Good night.